temple of thy spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. We have been studying the topic, the salt of the covenant. हम लोग वाचा के नमक के इस विषय पर अध्ययन करते आ रहे हैं। The first week we saw that we need to have salt in our relationship with people. पहले हफ्ते हमने देखा कि लोगों के साथ के हमारे संबंध में हमारे पास नमक होना चाहिए। Salt brings flavor नमक जो है वो स्वाद लेकर आता है and keeps away corruption. और वो भ्रष्टता को दूर रखता है। In all our relationship with people, we must have the flavor of Jesus Christ. लोगों के साथ के हमारे सारे संबंध में हमें यीशु मसीह के उस स्वाद को बनाए रखना होगा। The second thing we saw, दूसरी बात जो हमने देखी है that we need to have salt. We need to be like the salt of the earth. कि हमें नमक यानी पृथ्वी का नमक होना चाहिए। Where we need to pray for our leaders, pray for our country, our city, our locality. हमें अपने अगुवों के लिए, अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए, अपने आस पड़ोस के लिए प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है। Instead of speaking evil against our rulers, we need to pray for them and bless them. अपने अधिकारी शासकों के विरुद्ध में कहने के बजाय हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है, उन्हें आशीष देते चले जाना है। That God would give them wisdom to make the right decisions for the country, for the state, for the places. कि परमेश्वर उन्हें सही बुद्धि दे कि वो देश के लिए, राज्य के लिए और सभी बातों के लिए सही निर्णय लेने पाए। We need to fast and intercede for our country. हमें उपवास करके अपने देश के लिए मध्यस्थी करते चले जाना है। The third thing we saw, और तीसरी बात जो हमने देखी that we need to have salt in our speech. कि हमारे बोलने में हमें नमक बनाए रखना है। The words that come out of our mouth can either kill someone or give life to someone. हमारे मुंह से निकलने वाले शब्द किसी को मार सकते हैं या फिर किसी को जीवन दे सकते हैं। When we curse somebody, जब हम किसी को कोसते हैं it becomes a weapon in the hand of Satan. तो वो शैतान के हाथों में मानो एक हथियार हो जाता है And he will use it to kill a person. और वो उस व्यक्ति को मारने के लिए उसका उपयोग करता है। I shared the story of a mother who cursed her daughter. मैंने एक कहानी बताई थी कि एक माँ ने अपनी बेटी को श्राप दिया था। She told her daughter, "You will never have a living child." उसने अपनी बेटी से कहा कि तेरा बच्चा कभी जिंदा नहीं रहेगा। That woman had 3 children. यानी उस स्त्री के 3 बच्चे हुए थे। 2 died soon after birth. उनमें से 2 तो जन्म के तुरंत बाद मर गए But the third one with great difficulty was able to be saved. और तीसरा जो है उसे बड़ी मुश्किल से बचाया गया था। बहुत उपचार के बाद वो बचा था। The words we speak can either kill someone or give life to someone. हम जो शब्द कहते हैं वो तो किसी की हत्या कर सकते हैं या फिर किसी को जीवन दे सकते हैं। We talked about that our words should always be with grace, with salt. हम इसके बारे में बताएंगे कि हमारे शब्द हमेशा अनुग्रह के हो, नमक से भरे हुए हो। Don't allow angry, cursing words to come out of your mouth. आप गुस्से से अपने मुंह से ऐसे श्राप देने वाले शब्दों को कभी बाहर ना आने दें। Don't give place for Satan to destroy somebody. यानी शैतान को जगह न दे कि वो किसी के जीवन को नाश कर दे। Remember, if our words are the cause for the harm to somebody, we will be counted as murderers before God. अगर हमारे शब्दों के द्वारा किसी का नुकसान होता है तो निश्चय ही परमेश्वर के सामने हम हत्यारिक रूप में गिने जाएंगे। इस बात को आप याद रखिए। Jesus said that. यीशु ने ये कहा है, If you speak angrily against someone and curse someone, you are equal to a murderer. अगर गुस्से में आकर तुम किसी को श्राप देते हो, उसके बारे में बुरा कहते हो, तो तुम हत्यारे के बराबर हो जाते हो। Now we come to the fourth area where we need to have salt. अब चौथा क्षेत्र हम देखेंगे जहाँ पर हमें नमक रखना जरूरी होता है। And this is in the area of your marriage. और ये तो आपके विवाह के क्षेत्र में होता है। Let me come to the, in fact, I taken the title, the salt of the covenant comes from this particular topic. और खास करके वाचा का जो नमक है, इस शीर्षक को मैंने इसी खास विशेष मुद्दे के लिए चुन कर रखा हुआ है। In Malachi chapter 2 and from verse 14 to 16. मलाकी अध्याय 2 वचन 14 से 16 में हम देखते हैं, यहाँ पर इस तरह से कहा गया है, It says, "The Lord was witness to the marriage covenant between you and your wife, against whom you have dealt treacherously, to whom you were faithless." इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी जवानी की संगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच में साक्षी हुआ था,
जिससे तूने विश्वासघात किया है। ये कहता है कि यहोवा उसके लिए साक्षी हुआ था जिससे तूने विश्वासघात किया है। इस तरह से वचन हमें बताता है। And for the Lord God of Israel says, I hate divorce, and therefore keep a watch on your spirit that you do not deal treacherously and faithlessly with your wife. क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा ये कहता है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव में ढांपता है, इसलिए तो अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। ये कहता है, मैं तलाक से घृणा करता हूँ। Marriage is a covenant between two people. विवाह तो दो लोगों के बीच की वाचा होती है, And if you do it as children of God, it's a holy covenant. और अगर आप परमेश्वर की संतान के रूप में इसे करते हैं तो निश्चय ये पवित्र वाचा है। You know, there's a very interesting custom in the Jewish people. जानते हैं, यहूदी लोगों में एक बहुत ही दिलचस्प ऐसी परंपरा है। When a man and a woman are going to be married, जब किसी स्त्री और पुरुष का विवाह होने वाला होता है, यानी उनका विवाह होने वाला है, in the presence of all the rabbis and the elders, और सभी रब्बी और सभी जो प्राचीन हैं उनकी उपस्थिति में, the man will bring a packet of salt. तो वहां पर जो पुरुष है वो एक पॉकेट नमक लेकर आता है, And the woman likewise, she will bring a packet of salt. और इसी तरह से जो स्त्री है वो भी एक पैकेट नमक लेकर आती है। Now, this is how they make their covenant. और देखिए, इस तरह से वो वाचा बांधते थे। The man will take some salt from his packet जो पुरुष है वो उसके पॉकेट में से कुछ नमक लेता and he will put it into her packet. और वो उस नमक को वो स्त्री के पैकेट में मिला देता, And she will take some salt from her packet और जो स्त्री है वो अपने पॉकेट में से कुछ नमक निकालती और and she will put it into his packet. वो पुरुष के नमक के पैकेट में उस नमक को मिला देती थी। And then they will shake the salt packets. Each one will shake the packets. और उसके बाद में जो है वो तो अपने अपने नमक का जो पैकेट है उसे हिलाया करते थे, And they make the covenant like this. और इस तरह से वो आपस में वाचा बांधते थे। The day that you can separate your salt grains from my salt, and the day that I can separate my salt grains from your packet, that is the day our marriage will break. जिस दिन तुम मेरे नमक के पैकेट में से तुम्हारे डाले हुए नमक को तुम अलग करो और जिस दिन तुम्हारे नमक के पैकेट में से मैंने जो नमक डाला था उसे मैं अलग करूं, तभी हमारा विवाह In other टूटेगा। words, दूसरे शब्दों में, It should not be broken. ये कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता है, Because you cannot separate the grains of salt that you mixed. It's all the same. क्योंकि इस तरह से नमक के जो दाने मिलाए गए हैं उन्हें अलग नहीं किया जा सकता, उसी तरह से वाचा तोड़ी नहीं जा सकती है। That was the seriousness of the covenant they made. यानी उन्होंने जो वाचा बांधी उसकी गंभीरता इतनी थी कि वो उसे अलग नहीं कर सकते थे, That was the holiness of the covenant they made to each other. और उन्होंने एक दूसरे से जो वाचा बांधी थी ये तो उसकी पवित्रता थी। Nowadays you find, इन दिनों में हम देखते हैं for every small thing, divorce your wife. कि हर एक छोटी बातों के लिए लोग पत्नी को तलाक दे देते हैं। For every time you don't get along with each other, kick her out. अगर एक दूसरे के साथ में अच्छे से नहीं रह सकते हैं तो ठीक है, उसे तलाक दे दो, उसे निकाल दो, इस तरह से वो सोचते We हैं। take it, the marriages are so weak. इन दिनों में विवाह इतने कमजोर हो चुके हैं। God says, I hate divorce. परमेश्वर ने कहा कि मैं तो तलाक से नफरत करता हूँ। God says, I was witness to the covenant you made between your wife and you. परमेश्वर कहता है, जब तूने अपनी पत्नी के साथ में वाचा बांधी तो मैं उस वाचा का गवाह And I हूँ। saw the vows you took. तुमने जो प्रतिज्ञाएं की है उसे मैंने देखा है, वो कहता Said, है। don't deal treacherously with your wife. इसलिए अपनी पत्नी से कठोरतापूर्ण व्यवहार न करें, Or the wife don't deal treacherously with the husband. और पत्नी अपने पति के साथ में कठोरता का व्यवहार बिल्कुल न करें। Keep faithfulness in your marriage. अपने विवाह में विश्वास योग्यता को बनाए रखिए, So important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। Even among Christian families, there is a lot of divorce going on. यहाँ तक कि अभी इन दिनों में मसीह परिवार में भी बहुत से तलाक होते जा रहे हैं। God says, I hate divorce, and yet they're getting divorced. परमेश्वर ने कहा कि मैं तलाक से घृणा करता हूँ, लेकिन फिर भी ये लोग तलाक लेते जाते हैं। They say, oh brother, the differences are so much, we cannot get over the differences. वो कहते हैं, भाई हम दोनों में इतना फर्क है कि हम एक दूसरे के इस फर्क को कभी सह नहीं सकते हैं, कभी निभा नहीं पाते हैं। Oh, initially we loved each other, now we just hate each other. शुरू में तो हमने एक दूसरे से प्यार रखा, लेकिन अभी इन दिनों में एक दूसरे से नफरत करते हैं। हम एक दूसरे से बहुत नफरत करने लगे हैं। We can't even bear to look at each other. हम तो एक दूसरे की ओर देखना भी नहीं चाहते हैं, इस तरह से कहते हैं। And they say there is no hope for our marriage. और वो कहते हैं कि हमारे विवाह के लिए अभी कोई भी आशा बाकी नहीं रही है। I once saw a Christian film. मैंने एक मसीह फिल्म देखी थी, एक बार मैंने एक मसीह फिल्म देखी, It's a parable movie that's about biblically based. और ये तो दृष्टांतों की फिल्म है जो कि बाइबल के आधार पर थी, Title was Fireproof. और उसका टाइटल था फायर प्रूफ।
ये इसका नाम था। The man was a fireman, और उसमें काम करने वाले व्यक्ति अग्निशामक दल में काम करने वाले व्यक्ति थे। and he was always rescuing people from fire, burning buildings and all sort of heavy work he was doing. और जो जलती हुई बिल्डिंग है उसमें से वो लोगों को जिंदा बचा कर निकालते, इस तरह की बड़ी मुश्किल का काम किया करते थे। वो लोगों की जान बचाते थे। He was a big hero on that side. और वो तो उस तरफ में बहुत ही बड़े हीरो थे, But in his family, लेकिन अपने परिवार में there was conflict. हमेशा मतभेद हुआ करता था। The love was gone. उनका प्रेम चला गया था। He said, there is no hope for my marriage. और उन्होंने कहा मेरे विवाह के लिए कोई भी आशा नहीं है, ये बच नहीं सकता है, This cannot be cured. ये कभी ठीक भी नहीं हो सकता है, We have to go for divorce. हमें तलाक लेना ही होगा। But the father of that man was a very wise man. लेकिन उस व्यक्ति के जो पिताजी थे वो तो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। And he gave him a small book. I said, I'm going to send you a little book. तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें एक छोटी सी किताब भेजूंगा। इस तरह से उन्होंने एक किताब दी। It's a 40-day program. वो तो बस 40 दिन का प्रोग्राम था। He said, don't go for divorce until you finish this 40 days. उन्होंने कहा इन 40 दिनों के पहले तुम कभी तलाक नहीं लेना। And so the man took the book and day by day he will be following one page. He'll apply it. तो उन्होंने उस किताब को लिया और एक एक दिन उसे पढ़ते जाते थे। एक एक बातों का वो अपने जीवन में उपयोग करने लगे। And it was like this. First day, do something good for your wife. और ये तो पहले दिन था कि अपनी पत्नी के लिए कुछ भलाई का काम करें। It applies both ways. If the husband is the wrong direction, the wife can apply the same thing. ये तो दोनों तरह से उपयोगी होता है। अगर पति गलत कर रहा है तो पत्नी उनके लिए इस तरह से भले काम कर And सकती है। his second day, buy her something good gift. और फिर दूसरे दिन ऐसा था कि उसके लिए कुछ अच्छी वस्तु खरीद कर लेकर आओ। Third day, make a nice dinner at home for your wife. और तीसरा दिन ये था कि अपनी पत्नी के लिए रात के समय बहुत ही अच्छा खाना पकाना। Fourth day, speak loving words. Like that. So, like that, 40 days. और चौथा दिन था कि अच्छे प्रेम के शब्द बोलते चले जाएं। इस तरह से 40 दिन का ये पूरा कोर्स था। In other words, don't do the opposite of what you were doing. और जो कुछ भी तुम कर रहे हो उसका उल्टा बिल्कुल नहीं करना। And what happened was, by the time he was coming to 20th day, 30th day, the whole atmosphere was changing in the house. और फिर जैसे 20वां और 30वां दिन आने लगा, घर के अंदर का पूरा जो वातावरण था वो पूरी तरह से बदलने लगा। The wife did not know that he was following a certain booklet. She didn't know. पत्नी को पता नहीं था कि ये किसी किताब को पढ़कर उसके अनुसार ये सब कुछ करते जा रहे हैं। And she was so surprised at so many good changes in her husband. और उसके पति में आने वाले इस अच्छे बदलाव को देखकर वो बहुत चौंक गई थी। Initially she was resisting him and saying, she was saying, you are trying to be, you are acting. शुरू में वो इनका इनकार कर रही थी, कह रही थी कि तुम यहाँ पर कोई ना कोई दिखावा कर रहे हो, तुम केवल ये नाटक कर रहे हो, ऐसे कहा। There were many times that man was frustrated. I'm trying to do everything good and she's not accepting. तो कई बार ये जो पुरुष है वो परेशान हो गए थे, मैं अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये नहीं समझ रही है, ये कुछ करने ही नहीं दे रही है। But the father told him, just be patient, be patient. लेकिन पिताजी ने कहा बस धीरज रखो, धीरज रखो, सहते चले जाओ। Continue doing what you're doing. जो तुम कर रहे हो उसे करते चले जाओ। By the 40th day, और फिर 40वां दिन आया, the love had come back. उनका प्रेम वापस आ चुका था। Oh, they loved each other so much. वो तो एक दूसरे से इतना ज्यादा प्रेम करने लग गए थे। Then she saw the book that he had been following. फिर उसकी पत्नी ने उस किताब को देखा जिसे पढ़कर ये सब कुछ कर रहे थे। And already 40 days had passed and another 10 extra days had passed. यानी 40 दिन बीत चुके थे और ऊपर से और 10 दिन बीत चुके Then थे। she saw the book only 40 days. और फिर उन्होंने देखा कि किताब में तो केवल 40 दिन लिखा है। And with tears she asked her husband. और आंसू बहाते हुए उसने अपने पति से पूछा, Now it's 50th day and you're still continuing. अभी 50वां दिन है, अभी भी तुम ये सब कुछ कर रहे हो? And the husband said, और पति ने कहा, where does it say that you have to stop? यहाँ पर कहाँ पर लिखा है कि ये सब कुछ करना तुम्हें रोक देना है? I'll do it my whole life. मैं अपने पूरे जीवन भर ऐसे करूंगा। He learned how to bring life back into his marriage. वो सीखे कि कैसे अपने वैवाहिक जीवन में वापस जिंदगी लेकर आ जाएं, कैसे उसमें जीवन लाएं। There is no marriage which is beyond the power of God to change. देखिए ऐसा कोई विवाह नहीं जो परमेश्वर के बदलाव की सामर्थ्य के बिल्कुल परे हो। God has solutions to all your problems. परमेश्वर के पास आपकी सारी समस्याओं के लिए हल है। When you come to God and say, God, help me to get my marriage back. जब आप परमेश्वर के पास आकर कहते हैं, परमेश्वर मेरी मदद कर कि मेरा वैवाहिक जीवन फिर से अच्छा हो जाए। Teach me what I need to do. मुझे सिखा कि मुझे क्या करना चाहिए। And you start doing the loving things. और आप ऐसे प्यार की बातों को करते चले जाते हैं। You start looking after your partner. और आप अपने जीवन साथी की ओर देखना शुरू करते हैं। You start doing good things to them. आप उनके लिए कुछ भलाई करना शुरू करते हैं। You decide and start speaking loving words to them. आप निर्णय लेकर उनके साथ में प्रेम के शब्द बोलना शुरू करते हैं। As you keep doing this day by day, और जैसे आप इसे करते चले जाएंगे दिनों दिन, you will find that the God will once again bring the warmth and the love back into your family. तो आप यही पाएंगे कि परमेश्वर आपके परिवार में फिर से उस प्रेम को, उस गर्मी को वहां पर वापस ला रहा है। Never say it's beyond repair.
कभी न कहें कि ये तो अभी ठीक होने से बिल्कुल परे हो चुका है। You can take decision. आप निर्णय ले सकते हैं, You can take steps towards it. आप इसकी ओर कदम बढ़ा सकते हैं। It's very important that your husband and wife realize one thing. एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो पति और पत्नी को जानना जरूरी है। Speak loving words to each आप other. एक दूसरे के लिए प्रेमपूर्ण शब्द कहते चले जाएं। Harsh words will break down your marriage. कठोर शब्द जो है वो तो आपके वैवाहिक जीवन को पूरी तरह से तोड़ देते हैं। See, words can hurt people. देखिए, शब्द जो है लोगों को चोट पहुंचा सकते हैं। When I was a small boy, जब मैं छोटा बच्चा था, there used to be one song that we used to sing. हम एक गीत गाया करते थे, Sticks and stones will break my bones, यानी लकड़ी और पत्थर जो है वो मेरी हड्डियों को तोड़ देंगे, वो मेरी हड्डियां तोड़ सकते हैं, but words cannot hurt me. लेकिन शब्द मुझे कभी चोट नहीं पहुंचा सकते हैं। That is not correct. वो सही बात नहीं है। The words that we speak can destroy your marriage. जो शब्द हम कहते हैं वो तो आपके वैवाहिक जीवन को पूरी तरह से नाश कर सकते हैं। The sticks and stones will hurt you for some time, but words can destroy you. लाठी से और पत्थर से कुछ समय का दर्द होगा, लेकिन शब्द जो है वो आपको पूरी तरह से नाश कर देंगे, वो आपको पूरी तरह से खत्म कर देंगे। When we speak angry words, harsh words, it leaves wounds in the heart. जब हम गुस्से में आकर कुछ कहते हैं, कठोरता के शब्द कहते हैं, तो ये निश्चय ही दिल में एक जख्म बनाकर रखते हैं। Remember what we said. याद रखिए हमने क्या कहा है। Life and death is in the power of the tongue. जीवन और मृत्यु जो है वो तो जीभ के वश में होती है। A wise man जो बुद्धिमान मनुष्य है is a man who knows how to build up his marriage with the words he speaks. वो तो ऐसा व्यक्ति है जो अपने बोले गए शब्दों के द्वारा जानता है कि कैसे अपना वैवाहिक जीवन उभारते जाएं। How many people watching me today speak good words to the wife or to their husband? How many people do that? कितने लोग जो आज मुझे देख रहे हैं, आप अपने पति से या पत्नी से अच्छे शब्द कहते चले जाते हैं, ऐसे कितने लोग हैं? How many people appreciate the partner? कितने ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन साथी की सराहना करते हैं? Don't say, oh, you look fat, you look ugly. Don't say that. आप ये मत कहिए कि तुम बुरे दिखते हो, बदसूरत दिखते हो, ऐसे मत कहते जाएं। Tell her you are beautiful in my eyes. आप ये कहें कि आप बहुत सुंदर हैं, अच्छे How हैं। many people learn to speak loving words to their wife or to their husband? How many people learn to do that? कितने लोग सच में अपनी पत्नी से या अपने पति से ऐसे प्रेमपूर्ण शब्द कहते हैं, अच्छे शब्द कहते हैं? Oh, brother, we are Indians, we don't talk like ओ that. भाई, हम तो भारतीय लोग हैं, इस तरह से हम बात नहीं Oh, करते these हैं। are all for foreigners. ये जो सारी बातें ये तो सब विदेशी लोगों के लिए है। No, नहीं, we can learn to make it a practice to speak loving words. हम तो ये आदत बना सकते हैं कि हम प्रेमपूर्ण शब्दों को कहते चले जाएं। And when you learn to speak good words and loving words, you build up your marriage. और जब आप प्रेमपूर्ण और अच्छे शब्दों को कहते हैं तो आप अपने विवाहित जीवन को उभारते चले जाते हैं, ऊपर लेकर आते A हैं। wise man knows that when he shows love in his words and his actions, the wife also will return the love to him. एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि जब वो अपने शब्दों में, अपने कर्मों में वहां पर प्रेम के शब्दों को दिखाते जाएगा तो उसकी पत्नी भी उसके लिए उसे प्रत्युत्तर देती जाएगी। But when you speak the wrong things, you will get the wrong things back. और जब आप गलत बातों को कहते जाएंगे तो आप बदले में केवल गलत बातें सुनेंगे। Bible says, whatever you sow, you will reap. बाइबल ये कहती है कि आप जो कुछ भी बोते हैं आप उसी की कटनी पाएंगे। You sow angry words and harsh words, you will reap destruction. अगर आप क्रोध के शब्द कहेंगे, कठोरता के शब्द कहेंगे तो आप विनाश की कटनी करेंगे, आप केवल विनाश ही प्राप्त करेंगे। When you sow kind words and loving words, you will reap beauty and love in your marriage. और जब आप दया के शब्द, प्रेम के शब्द बोलते चले जाएंगे तो अपने वैवाहिक जीवन में उसके बदले में सुंदर और बहुत ही अच्छे शब्दों को वापस पाएंगे। Because people don't know how to control what they speak. They live in hell on the earth. Their marriages are hell on the earth. क्या कह रहे हैं उस पर नियंत्रण नहीं रखते हैं, इसलिए पृथ्वी पर मानो नरक के जैसा जीवन जीते चले जाते हैं। उन्होंने अपने जीवन को नरक बना दिया है। They just destroy their marriage with the angry words they speak. वो जो क्रोध से शब्द कहते हैं उसके द्वारा अपना वैवाहिक जीवन ऐसे ही नाश कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। We can take a decision. हम एक निर्णय ले सकते हैं I will not speak angry words. कि मैं क्रोध में आकर कभी गलत शब्द नहीं कहूंगा। Write down on a book what you want to do day by day. Do it. आप अपनी किताब में लिखते चले जाइए कि आप प्रतिदिन क्या करना चाहते हैं और उसके अनुसार आप करते चले जाएं। Learn to speak. And whenever by chance you get angry and speak something, learn to say I'm sorry. आप जब भी क्रोध में आकर कुछ कहते हैं तो निश्चय आप सीख ले कि मुझे माफ कीजिए, इस तरह से आप शब्द कहिए। There are so many people in marriages, they never say sorry to each other. ऐसे विवाह में बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी एक दूसरे से माफी नहीं मांगी है। Oh, they will curse and be angry and insult the person and then be quiet for 5 days. They won't talk to each other. और वो तो एक दूसरे का अपमान करते, एक दूसरे को कोसते हैं, फिर बाद में 5 दिनों तक बातें नहीं करते हैं, एक दूसरे से कुछ भी नहीं कहते हैं। Oh, they think if we keep quiet, everything will be under the carpet. और उन्हें लगता है कि अगर हम चुपचाप बैठे तो सब कुछ ऐसे कारपेट के नीचे चले जाएगा। Remember, the wounds that get into the heart will remain. याद रखिए जो जख्म वहां पर दिल में पहुंचे हैं वो तो ऐसे बने रहते हैं,
वो घाव तो दिल में ऐसे ही बने रहते हैं And after some years, you get another fight. All the old things will come back. और कुछ साल बाद फिर से अगर लड़ाई झगड़ा होता है तो यही सारी पुरानी बातें वहां पर बाहर आ जाती है Because it's all inside the heart. The wounds are deep in the heart. क्योंकि ये सब कुछ दिल के भीतर में है और ये सारे दिल की गहराई की बातें हैं। But they can be healing when you ask forgiveness. लेकिन जब आप क्षमा मांगते हैं तो निश्चय ही चंगाई पा सकते हैं, आपको चंगाई मिल सकती है। The hurts can be healed when you sincerely repent and ask forgiveness. जब आप सच में पश्चाताप करते हैं, पश्चाताप करके क्षमा मांगते हैं तो ये जो चोट है वो ठीक हो सकती है, चंगी हो If the सकती wife है। has said something to the husband and hurt him, let her say, forgive me, I'm sorry what I did. अगर पत्नी ने ऐसे कुछ शब्द कहे जिससे पति को चोट पहुंची है तो वो कह सकती है मुझे माफ कीजिए, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। If the husband has done something against the wife and hurt his wife, अगर पति ने अपनी पत्नी से कुछ कठोरता के शब्द कहे हैं, उसे चोट पहुंचाई है तो वो भी इस तरह से कहते जाएं। don't think, oh, I'm a man, I'm not the one who should ask forgiveness. Don't think like that. आप ये मत सोचिए कि मैं तो मर्द हूं, मैं पुरुष हूं, मुझे क्षमा नहीं मांगनी चाहिए। Jesus, the Lord and Master, washed the feet of his disciples. यीशु जो कि प्रभु है, जो परमेश्वर है, उसने अपने चेलों के पैरों को धोए थे। He didn't say, look, I am the Lord, I am the Master, I am God, you should wash my feet. He didn't say that. उसने ये नहीं कहा कि देखो मैं स्वामी हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, तुम्हें मेरे पैर धोने चाहिए, ऐसे उसने नहीं कहा। He washed their feet. उसने उनके पैर धोए And he said, as I have done unto you, do so one to another. और उसने कहा जैसे मैंने तुम्हारे साथ में किया है वैसे तुम एक दूसरे के साथ में करते जाओ। Even as the husband, in fact, you should be the first one to ask forgiveness. और देखा जाए तो पति के रूप में निश्चय आपको सबसे पहले क्षमा मांगनी चाहिए। In that area also, you must take the lead. और यहाँ तक कि इस क्षेत्र में भी आपको पहले पहल करनी You must be चाहिए। ready to say, I'm sorry, I hurt you, I'm very sorry. आपको ये कहना चाहिए कि मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई, मुझे माफ कर दो। So many hurts will be healed when you're able to say, I'm sorry. जब आप कहेंगे कि मुझे क्षमा कर दीजिए तो बहुत से ऐसे जो चोट हैं वो तुरंत चंगाई प्राप्त करेंगे। Third chapter of 1 John, he says, Beloved, don't just love in words, but also in deed. पहला यूहन्ना अध्याय 3 में इस तरह से कहता है कि प्रियो, तुम अपने प्रेम को केवल शब्दों में ही नहीं लेकिन अपने कर्मों के द्वारा भी प्रकट करते Show जाओ। your love by your actions. अपनी क्रियाओं के द्वारा अपने प्रेम को तुम प्रकट करते जाओ। Take part in doing the work of the house. Do it. घर के काम में भागी हो जाए, उसे करते चले जाएं। Don't leave everything to the wife. सब कुछ पत्नी के ऊपर ही ना छोड़ें। You are the head of the family. Take responsibility in everything in the family. आप परिवार के मुखिया हैं, परिवार की हर एक बात में आप जिम्मेदारी उठाते चले जाएं। हर भाग में आप काम करते चले जाएं। Make a decision today आज ही आप निर्णय लें। on both the sides, wife and the husband. पति और पत्नी दोनों निर्णय ले लें। From today, आज से आगे I will not speak harsh words. मैं कठोरता के शब्द नहीं कहूंगा। I will not insult. मैं अपने जीवन साथी का अपमान नहीं करूंगा। I will not shout and, curse the other person. मैं ऐसे चिल्लाकर अपने जीवन साथी को श्राप नहीं दूंगा। And if I get angry and speak things, I will say, I'm sorry. Take a decision. और अगर मैं गुस्से में आकर कुछ कह देता हूं तो मैं निश्चय निर्णय लेता हूं कि मैं आगे बढ़कर उससे क्षमा मांग लूंगा। See, we are human beings. देखिए हम तो मनुष्य And there हैं। are times we do fall. कई बार हम गिर जाते हैं, We make mistakes. हम गलतियां करते हैं, But let us learn to ask forgiveness. लेकिन हम क्षमा मांगना सीख ले। And it clears up the misunderstanding so beautifully. और ये बहुत ही सुंदर तरीके से जो भी गलतफहमी है उसे दूर कर देता है। And when we humble ourselves and ask forgiveness, God will touch the other person and once again restore the relationship between you and your spouse. जब हम खुद को नम्र करते हैं, दूसरे व्यक्ति से क्षमा मांगते हैं, तो परमेश्वर निश्चय ही हमारे संबंधों में काम करता है और हमारे संबंधों को फिर से नया बना देता है, हमारे संबंधों को जीवित करता है। Remember, it is the pride which keeps you from asking forgiveness. याद रखिए, घमंड है जो आपको क्षमा मांगने से रोक कर रखता है। And God will resist the proud. और परमेश्वर घमंडियों का इनकार करेगा, But He gives grace to the humble. लेकिन वो दीन लोगों पर अनुग्रह करता है। In your family, bring all your problems to the Lord Jesus Christ. अपने परिवार में अपनी सारी समस्याएं प्रभु यीशु मसीह के सामने लेकर आएं And He will give you solutions to your problem. और वो आपकी सारी समस्याओं के लिए आपको हल देगा। He will help you to overcome your problem. वो आपकी मदद करेगा कि आप सारी समस्याओं के ऊपर जय पाएं। I'll ask you one thing. मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, Do you know the Lord Jesus Christ in your life? क्या आप प्रभु यीशु को अपने जीवन में जानते हैं? Do you have the peace of God in your family? क्या आपके परिवार में परमेश्वर की शांति है? Is there only hatred and anger in your family, or are you enjoying the love and fellowship of the Lord Jesus Christ? क्या आपके परिवार में केवल नफरत है या फिर आप प्रभु यीशु मसीह के प्रेम का और उसकी संगति को अपने परिवार में अनुभव करते जा रहे हैं? Is your family hell on the earth or heaven on the earth? क्या आपका परिवार पृथ्वी पर नरक के जैसे है या फिर पृथ्वी पर स्वर्ग के जैसे है? If you are struggling in all these areas, अगर इन सारे क्षेत्रों में आप मुश्किल का सामना करते जा रहे there हैं is a solution for you. तो आपके लिए एक हल है, That is, come to know the Lord Jesus Christ. और वो ये है कि आप प्रभु यीशु मसीह को जान लें।
He will be your Lord. He will become your Lord and Master. और वो आपका स्वामी हो जाएगा, वो आपका And प्रभु He हो will जाएगा, bless your family. और वो आपके परिवार को आशीष देगा, He will take care of your problems. वो आपकी समस्याओं को हल कर देगा, He will bless your children. वो आपके बच्चों को आशीष देगा, You will have a beautiful life. और आपका जीवन बहुत ही सुंदर होगा। First thing is, सबसे पहले बात यही if you है, have not accepted Jesus Christ, अगर आपने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया है, today is the day that you must accept Him. तो आज ही आप उसे स्वीकार कर लीजिए, And your life will change. और आपका जीवन बदल जाएगा, Family will change. आपका परिवार बदल So जाएगा, many things will be blessed. God will bless everything in your life. और बहुत कुछ आशीषित हो जाएगा। प्रभु आपके जीवन को आशीष देगा। Why don't you make that decision? क्यों ना आप ये निर्णय ले लें। If you want to receive Jesus Christ, pray with me now. अगर आप यीशु को स्वीकार करना चाहते हैं तो मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। If you want to have fellowship with God, pray with me now. अगर परमेश्वर के साथ संगति करना है तो मेरे साथ में अभी प्रार्थना कीजिए। Lord Jesus, प्रभु यीशु मसीह, I confess I'm a sinner. मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं एक पापी हूँ। I confess I've done many things against you. मैं अंगीकार करता हूँ कि मैंने तेरे विरुद्ध में बहुत से गलत काम किए हैं। I believe that you are the Son of God. मैं विश्वास करता हूँ तू परमेश्वर का पुत्र है, That you came to this world and died on the cross for my sins. कि तू इस संसार में आया और मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरा, कि तू मुझे छुटकारा दे। You took my punishment upon you. तूने मेरे सारे दंड को अपने ऊपर में उठा लिया है, And you rose again on the third day. और तू तीसरे दिन फिर से जी उठा है। Lord Jesus, प्रभु यीशु मसीह, forgive all my sins. मेरे सारे पापों को क्षमा कर। I turn my heart towards you. मैं अपना दिल तेरी ओर फेरता हूँ। Come into my life. मेरे जीवन में आ जा, Make me your child. मुझे अपनी संतान I बना। will follow you all the days of my life. मैं जीवन भर तेरे पीछे चलते रहूंगा। प्रभु In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करता Amen. हूँ, आमेन। Get a Bible. एक बाइबल लीजिए, Study the Bible. बाइबल का अध्ययन कीजिए, Find a good church. अच्छा चर्च ढूंढिए, Join a fellowship. अच्छी संगति में जुड़ जाइए। Spend time in prayer and worship 2 hours minimum a day. आप दिन में कम से कम 2 घंटे बाइबल पढ़ने में और आराधना में बिताते चले जाएं, The Spirit of God will teach you the right things that which please Him. और परमेश्वर की आत्मा उसे प्रसन्न करने वाली सारी सही बातें आपको सिखाते चली जाएगी। I will pray for those who are sick. अभी मैं बीमारों के लिए प्रार्थना करता हूँ। Father Lord, I just pray for those who are watching me. पिता, इस समय मैं सभी दर्शकों के लिए प्रार्थना करता हूँ। Every sickness I rebuke in Jesus' name. हर एक बीमारी को यीशु के नाम में मैं डांटता हूँ। I bind that spirit of infirmity. मैं कमजोरी की इस आत्मा को अभी बांध देता हूँ। I command every sickness to go in Jesus' mighty name. मैं आज्ञा देता हूँ कि हर एक बीमारी यीशु के सामर्थी नाम में चली जाए, दूर हो जाए। Every incurable disease be cured in Jesus' name. हर एक असाध्य बीमारी जो है वो तो यीशु के नाम में ठीक हो जाए, चंगी हो जाए, यीशु के नाम में दूर हो जाए। Cancer go in Jesus' name. कैंसर यीशु के नाम में चले जाए, ऐसे मैं आज्ञा देता हूँ। Lord, I release your favor and blessing upon those who are watching. प्रभु, इन सारे दर्शकों के ऊपर मैं तेरी कृपा और तेरे दया और आशीर्वाद को खोलता हूँ। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ, Amen. आमेन। God bless you परमेश्वर आपको आशीष दे। and see you next week. अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी।